السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈ ود اقسا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں ماہ درخشاں بائی فاطمہ لغاری کا ایپیسوڈ نمبر 34 لے کر۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام سرمئی سی ہو کر رات میں پگھل رہی تھی۔ پنجاب ہٹ میں کھلے آسمان تلے صوفے پر بیٹھے ہوئے المیرا گہری نظروں سے دور تک پھیلے ہوئے سبز پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ فلک بوس مضبوط اور جمے ہوئے پہاڑوں کی سختی کو گھاس کی نرمی نے ڈھکا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکوں سے کمر پر گرے ہوئے بال لہراتے تھے، کندھے پر ٹکا ہوا دوپٹہ ڈھلکنے کو تھا۔ تھوڑی دیر قبل سنے گئے الفاظ کا زہر لہو بن کر آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ دماغ سن ہو چکا تھا، کوئی آواز کانوں میں پڑتی تھی، نہ کوئی سوچ ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی تھی۔ بس ایک المیرا ہے، زخمی نظروں سے سنگی پہاڑوں کو تکتی جاتی تھی۔ ہوا کے جھونکے مہنگی مردانہ خوشبو اپنے ساتھ لائے جو اس کی تمام تر حسیات جگا دیتی تھی۔ سانس کے ساتھ اندر اترتی مشک بہت قریب سے اٹھی تھی۔ کندھے پر ٹکتی کتھئی جیکٹ سے ٹھنڈ کا احساس یکدمی گرم گرم جیسے احساس میں بدل گیا۔ دو مضبوط محافظ ہاتھ اس کے شانوں پر ٹکے۔ اس نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے سر اٹھا کر اپنے عقب میں کھڑے ہوئے عمر کو دیکھا۔ اوہ! ان کے چہرے کے نرم تاثرات، نظروں میں پناہ تحفظ اور عقیدت۔ لہجہ بھر میں لہو رنگ آب ہوا۔ دنیا کے سامنے بہادری کا لبادہ اوڑھنے والی المیرا عمر کو دیکھتے ہی بچوں جیسی نرم پڑ جاتی تھی۔ تکلیف ہوتی تو لمحوں میں آنکھیں نم ہو جاتی، پھر ان کے ہاتھ جانے اور المیرا کے بھیگتے رخسار۔ شی ہٹ می! آواز لرز گئی۔ ان کا ہاتھ اس کے رخسار پر ٹھہرا، دھیرے سے اس کے رخسار کو انگوٹھے سے سہلایا۔ وہ لب بھیجتی سر جھکا گئی۔ عمر اس کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ کئی پل اور کافی دیر ساری دنیا کی نظریں ان کی پشت پر رک گئی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ المیرا اماں کی قبر پر گئی تھی اور پھر اپنے چھوٹے بہن بھائی کے گھر۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھا تو دروازہ احمد نے کھولا۔ چند پل تذبذب سے اسے دیکھتا گیا۔ وہ المیرا تھی، ہوش سنبھالتے ہی جس لڑکی کو اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے کا خیال کرتے دیکھا تھا۔ وہ المیرا جو اس کے لیے مار کھاتی تھی، اس سے بھی مار کھاتی تھی، پھر بھی اس کی پرواہ کرتی تھی۔ وہ المیرا۔ دیر کر دی آپ نے۔ ماں کے لاڈلے کی آنکھیں ماں کی یاد میں نم ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ احمد بلک کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ پیچھے سے آتی ہنا نے اسے کالر سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے زناٹے دار تھپڑ المیرا کے گال پر رسید کیا تھا۔ تھپڑ بہت زور کا تھا۔ اس کا گال کافی دیر لال رہا، درد کرتا رہا، کان کچھ بھی سننے سے انکاری ہو گئے تھے۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ تمہارے شوہر نے میری ماں کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، تو تم کس منہ سے یہاں چلی آئی ہو؟ کھانا نے نہیں۔ اب بھی اسی بدذات کی صفائی دینا تم ساری زندگی معصومیت اور بے بسی کا رونا رو کر مردوں کو لبھاتی رہتی ہو۔ آخر میں نملی میرا کے سردار سے نکاح کر لیا، قتل کے الزام سے بری ہو گئی، ڈھیر و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی، اور اب یہاں یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بغیر ہم بھوکے تو نہیں مر گئے۔ اس کا ہر لفظ خنجر کی صورت اختیار کر کے المیرا کے دل میں پیوست ہوتا گیا۔ فہد کے دیکھنے سے تمہیں گھن آتی تھی، اور اپنے عاشق کے ساتھ رات گئے تک رنگرلیاں مناتے ہوئے تمہارا ایمان سلامت رہتا تھا۔ تم تو واقعی ہنا! اس کی آواز تیز ہوئی، لہجہ پتھر ہوا۔ کیا ہنا؟ ہاں کیا ہنا؟ سینے پر بندھے ہاتھ کو کھولتی وہ لڑنے کے سے انداز میں آگے ہوئی۔ میرے منگیتر پر تو تم نے ڈورے ڈال لیے، اب مجھ پر چیخ رہی ہو؟ تم تو اس حرام زادے سے زیادہ گری ہوئی ہو۔ المیرا وہ اپنی ماں کا کیا بھگت رہا ہے، اور تم خود غلیظ ترین عورت ہو۔ تم منحوس، ملون، اور جو دوسروں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ تم بے حیا، بد کردار ہو، جس پر گلی محلے کے لڑکے بھی مرتے ہیں۔ گالیاں المیرا کو ٹریگر کرتی تھیں۔ وہ مغلزاد بکتی جا رہی تھی، اور یک ٹک اسے دیکھتی المیرا کی سماج سے ٹکراتی بیپ کی آواز دماغ میں گونجتی، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو جما رہی تھی۔ ہنا کے مسلسل ہلتے لب اور کانوں میں تیز ہوتی بیپ کی آواز اتنی تیز کہ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا، دوسرا ہاتھ کان پہ رکھا تھا، آنکھیں سختی سے میچی۔ اسے لگا وہ سماعت کھونے لگی ہے۔ جس شوہر پر تم اتنا اتراتی ہو المیرا، مت بھولو تمہاری زندگی کا ایک حصہ اسی کی وجہ سے داغدار ہے۔ تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو، خوش نہیں رہ سکتی۔ اپنے قاتل سے کب کس کو محبت ہوئی ہے؟ وہ حرامی صرف تخت بچانے کے لیے تمہیں ساتھ لے کر گیا ہے، کل کو کسی گلی میں کتوں کے آگے پھینک دے گا۔ کان پر ہاتھ کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بیپ کی آواز دانتوں میں خارش کرتی تھی، دماغ میں لگتی تھی۔ ہنا بس کرو المیرا۔ احمد اسے سنبھالنے کے لیے آگے آیا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ وہیں رک گیا،
अलमीरा खौफजदा नम निगाहों से दोनों को देखे गई। काश वो कुत्ते तुम्हारी सांस की नाली नोच डालते, वरना तुम्हारा बाप जहाज में तुम्हें साथ लेकर मर जाता। वबाले जान बन गई हो तुम अलमीरा। अमर ने समझाया था, मगर जाने क्यों लोगों को समझने में हमेशा उससे कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी। अपनी गलती का खामियाजा गालियों और लानतान की सूरत में भुगत कर वो लौट गई थी। कुछ मोहब्बतें हमारे नसीब में नहीं होती हैं मीरा। हम दुआ करें या गर्दन गिरवी रखवा दें, उन मोहब्बतों से हमारी झोली खाली ही रहेगी। हकीकत तस्लीम करना पड़ती है, कभी कभार हार मान लेने में आफियत होती है। मोहब्बत की बात करते अमर सरापा फिक्र बने बैठे थे। वो पुरशक आंखों से उन्हें देख रही थी। 100% मार्क्स लेने के बावजूद एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोए छोटे बहन भाई से हार जाता है। जीते जागते बच्चे माँ बाप की नज़रों में गुम हो जाएं तो बचपन ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, खुद को जाहिर करने के लिए खुद को कहाँ तक और कितना मारा जाए। जिनके दिल पत्थर हो चुके हों, उनके दरवाजे पर दस्तक देने से अपने ही हाथ जख्मी होते हैं जाना। तुम्हें पता है, कभी कभार हम खुद को विक्टिमाइज कर रहे होते हैं कि मेरे साथ सबने बुरा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हम खुद अपने साथ करते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूर ना रहकर, चंद दोस्तों के लिए अपना जहनी सुकून तबाह करके, माँ बाप की नज़र में आने के लिए अपने शौक मार के, बहन भाइयों की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपना आप वार कर, इंसान सबसे ज़्यादा बुरा अपने साथ खुद करता है। तुमने भी यही किया है, 1 बार 2 बार 3 4। आखिर किसी को सुधरने के लिए कितने ही मौके दिए जाने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सारी ज़िंदगी? क्या वो दूसरा शख्स उस काबिल है कि उसके लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी जाए? कोई भी इस काबिल नहीं होता मीरा। अगले के पास कारून के खजाने हों या वो आपसे बेअंत मोहब्बत के दावे करें, वो कभी भी आपकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। उसे इतनी इजाज़त ना दी जाए कि वो अपने खजानों, अपने दावे से आपका सुकून खरीद सके, कभी नहीं। वालिदैन और बहन भाइयों का रिश्ता बहुत अनमोल है, मगर इस रिश्ते पर दुनिया ख़त्म नहीं। बहुत से लोग बिन माँ बाप के भी ज़िंदगी जी लेते हैं। शहदरंग आंखों में कांच का सा कुछ टूटा था। बगौर उसकी आंखों में झांकते वो अंदर उबलते हुए फिशार को दबाते कहते गए, मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। तुम इतनी मासूम हो कि अपनी जान लेने वाले को भी दूसरा मौका दे दोगी, और मैं इतना बेरहम हूँ कि अब किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो सर कलम कर दूंगा। नमकीन पानी का कतरा रुखसार पर गिरा, थोड़ी सी टपका। उन्होंने गहरी सांस अंदर उतारी थी, जब्त के मारे मुट्ठियां भींच ली। तुम्हें उनके दरवाजे पर दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीरा, मैं ऐसा ही करूँगा। असूलन तुम्हें खुद को खुद बचाना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुद अपना बचाव करो, लेकिन मीरा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे करना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे मामले में लोगों को दूसरा मौका देने का कायल नहीं। पहली गलती आखिरी साबित करता हूँ। बेक वक्त दोनों रुखसारों पर आंसू गिरे। दोनों हाथों से उसने अपने गाल रगड़े थे, बच्चों की तरह नाक सुकेड़ी थी। बाय गॉड वुमेन, यू आर सो फेमिनिन डेट आई फील लाइक प्रोटेक्टिंग यू नो मैटर वॉट। उन्होंने इतना बेसाख्तगी से कहा कि वो नजरें चुरा गई। इतना नाजुक सी क्यों हो, इतनी प्यारी क्यों हो तुम? रोते हुए इतनी मासूम क्यों लगती हो यार? वो जैसे थक गए, वो ऐसे रोती जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोगों को इतना प्यारा नहीं होना चाहिए। नहीं हूँ मैं प्यारी, नहीं हूँ मासूम, नाजुक तो हो ना। वो मुस्कुराए। वो भी नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ मैं, खा जाती हूँ सबको। भीगी गुड़मुड़ होती आवाज़, फिर ये गुस्सा, वल्लाह ये हशर सामान्य। नहीं, तुम चुड़ैल नहीं, पांडा हो, पांडा। मुझे नहीं पसंद अपना गोलमोल चेहरा और ये गाल, इनकी वजह से पिक अच्छी नहीं आती। तो नक्कर कहा, मुझे तो बहुत पसंद हो, गोल मटोल चेहरा भी, बड़े बड़े गाल भी, तुम उन्हें कुछ नहीं कह सकती। रोब झाड़ा, हक जमाया। क्यों, मेरे गाल हैं, मैं जो कहूँ जो करूँ। इन पर और तुम पर मेरा हक है, उन्हें जो कहोगी और करोगी मेरा कंसेंट तो लेना पड़ेगा। वो इस इस्तेहाक पर दंग रह गई। लमनी वाह, आंखें फैली हुई और शंगरफी गाल। अम्मा गर्दन गिराते हुए हल्का सा हंसती है। ब्लश बड़ा प्यारा करती हो तुम। वो गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखने लगी। हर शख्स हर चीज को देखा सिवाय उनके। वो हर शख्स हर चीज को नजरअंदाज करके फुर्सत से बस उसे देखते रहे। मुझे आप भी नहीं पसंद, खफगी से मुंह फुलाए कहा। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, अब मैं तुम्हें अच्छा खासा पसंद हूँ। ये बताओ क्या खाओगी? उन्होंने आगे होकर दरमियान में रखी हुई मेज से मेन्यू कार्ड उठाया। अलमीरा ने ठहर कर उन्हें देखा, फिर नजर हटाना भूल गई। सोफे से टेक लगाए, लबों पर मुस्कान सजाए वो मेन्यू कार्ड देख रहे थे। उन्होंने स्याह पैंट पर सफ़ेद स्ट्रिप्ड शर्ट पहन रखी थी।
शर्ट के आस्तीन इतने मोड़े हुए थे कि कलाई पर बंधी हुई सियाह घड़ी के बाद बाजुओं की कुछ रगें भी दिखती थीं। वो इतने अच्छे लग रहे थे कि उसका फूला हुआ मुंह मजीद फूल गया था। क्यों लगते थे वो इतने अच्छे? कुछ ना करके आम से होलिया में भी उसके दिल के गिर्द खड़ी सारी दीवारें गिराते अंदर चले आते थे। दिन कैसा रहा तुम्हारा? किरण से मुलाकात कैसी रही? वेटर को ऑर्डर देकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ठीक थी, मैं ईशल से भी मिली और हन्नान केक लाए थे, बहुत अच्छा था। मैं इतने अच्छे मूड में थी कि जब हम सब केक खा रहे थे तो मैंने खासे तौर पर एक बड़ा सा पीस आपके लिए भी पहले से निकाल दिया था, और गाड़ी में वो बस थोड़ा सा मैंने चखा था, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन अब मैं सारा खा जाऊंगी। वो हंसते हुए चेहरा तिरछा कर गए। ये तुम्हारी लव लैंग्वेज है, कुछ अच्छा लगे तो मेरे लिए भी लाना। उसने बाज़ाब्ता सर अस्बात में हिलाया, फिर फौरन नफ़ी में गर्दन को हरकत दी। प्यारी है, गैर महसूस अंदाज में दिल में घर करने वाली, बिल्कुल तुम जैसी, सादा और धीमी। वो मोहब्बत से उसे देख रहे थे। अलमीरा उन निगाहों की भी आदी होने लगी थी। अमर फुर्सत से उसे यूं देखते थे जैसे कोई अपने कुल मता को देखता है, गोया आती जाती सांसें उससे मुंसलिक हो। अरे आज किसी का मैसेज आया था, किसी ने ना सिर्फ ड्रेस कलर का मशवरा लिया था बल्कि अपनी तस्वीर भी भेजी थी। मैं सारा दिन खुशी संभालता नहीं थका, और जब वो ये कह रहे थे तो चेहरा खुशी और सरोशारी से दमक रहा था। अलमीरा ने बेसाख्ता पेशानी पर उंगलियां टिकाकर हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो मीरा, अडोरेबल। लहजा गंभीर था। अलमीरा अपने गाल देखते हुए महसूस कर रही थी। पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। खिलखिलाने वाली गुदगुदी का एहसास हुआ था। लबों पर कफ लग गया था। कानों में धड़कते दिल का शोर सुनती वो उनके तहफ्फुज़ भरे हुए नजरों के हिसार में रही। रात गहरी होने लगी थी। पहाड़ों पर सफ़ेद धुआं सा छाने लगा था। हट में शोर बढ़ने लगा था। लोग आते गए। रोशनियों में घिरे वो दो लोग काफ़ी देर वहीं बैठे रहे। उस दिन सुबह में लेक्चर्स देकर वो ए ब्लॉक लोन में चली आई थी। उसने अदीना को कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उसने लैंडलाइन पर कॉल की तो कॉल शेरदिल ने उठा ली थी। अदीना खाला की तबीयत खराब है, ड्रिप लगी है उन्हें, सो रही हैं। शेरदिल अपने लहजे की नमी उससे नहीं छुपा पाया था। अदीना की आगोश में माँ का लम्स था। उनकी गोद में सर रखकर वो तमाम फिक्रें भूल जाती थी। ये कैसा सितम था कि वो तकलीफ में थी और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ आने पर राजी नहीं होंगी। अमर खाना जा नहीं सकते। वाहिद हल जहन में यही आ रहा था कि वो अकेली ही चली जाए, लेकिन सब छोड़कर कैसे जाए? अमर के बगैर कैसे रहेगी? जॉब और यूनिवर्सिटी का क्या? हम आपके इसी साइलेंट प्रेजेंस को याद करते थे। आवाज़ पर वो चौंकी, गर्दन सीधी की तो उबैद को सामने खड़े देखा। वो मबहूम सा मुस्कुराता हुआ कंधे पर टिका हुआ बस्ता घास पर रखकर आलती पालती मारकर बैठ गया था। उबैद, अगर मैं रिजाइन दे दूं तो? उसका सवाल इतना बेसाख्ता था कि वो चौंका, फिर संभल भी गया। मम्मी कहती है इंसान को अपने लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। अगर कोई आसान राह दिखाई ना दे रही हो तो बिला वजह खुद को मुश्किल में न डालें। मम्मी ये भी कहती हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले बड़ों से मशवरा करना चाहिए। आपके घर में बड़े नहीं हैं क्या? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि अलमीरा मुस्कुराई। हस्बैंड है, वो इनकार कर देंगे। आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, मुझे कर सकती हैं, तभी मुझसे मशवरा ले रही हैं, है ना? वो अलमीरा का समझदार शागिर्द था। उसने सर अस्बात में हिला दिया। उबैद ठंडी सांस भर कर रह गया। छुट्टी ले लें, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी मत करें। मम्मी कहती हैं हमें जाते हुए इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि वापस लौटना मुमकिन हो। उबैद जा चुका था। वो अब मुजाहिद खान को कॉल कर रही थी। चचा, आप पाकिस्तान आ रहे हैं या मैं अदीना को कनाडा ले आऊं? सब खैरियत? मुजाहिद खान अचानक हमले पर बौखलाए। उनकी तबीयत खराब है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी उनके पास क्यों नहीं है। खाना जॉब की वजह से नहीं जा सकते। मैं खाना की वजह से जाने से कतरा रही हूँ। आपको अपनी इज्जत से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं। वो औरत सारी जिंदगी आपके नाम पर बैठकर हम जैसों के लिए माँ बनी, और अब उसे हमारी ज़रूरत है तो वो अकेली है। क्यों चचा? आवाज़ रुंध गई थी। शेरदिल कहाँ है? आपको वाकई लगता है शेरदिल हम सब की कमी पूरी कर लेगा? चचा, आपको खाला से मोहब्बत है ना? आपको उन पर इतना भी प्यार नहीं आता कि उनकी बीमारी में उनके पास चले आए? मैं तकलीफ में थी, मैंने एक पल के लिए सुकून में खाना को भी नहीं देखा था। वो मेरे लिए कई कई रातें जागे थे। आपकी कैसी मोहब्बत है जिसकी बस दास्तान सुनी है मैंने, कोई अमली मुजाहिरा कभी देखा नहीं मैंने। आप अलमीरा क्यों बन रहे हैं? आपको पता है अस्पताल के बिस्तर पर रह रहकर मुझे यह ख्याल आता रहा कि एक वक्त में खाना ने भी यही कहा था, उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी, मगर मैंने वही किया था जो आप कर रहे हैं।
हम दोनों मोहब्बत में इतने टॉक्सिक क्यों है चाचा? तेज तेज बोलते हुए आंखें भीगती गईं, सांस फूल गया। क्या चाहती हो मीरा? क्यों लड़ रही हो? थक कर पूछा। आ जाए चचा, भाड़ में गई दुनिया और लोग। अदीना खाले के लिए आ जाए, अपना दिल उनके लिए नरम कर लें। वापसी आसान नहीं है बेटे, नामुमकिन भी नहीं है। मुझे कोई तावील, कोई बहाना नहीं सुनना। आप आ जाएं, वरना मैं अदीना को कनाडा लेकर आ रही हूँ। और आप जानते हैं मैं बहुत जिद्दी बिगड़ी हुई लड़की हूँ। मैंने कहा है तो मैं ऐसा करूँगी। अमर घुटने से लगकर बैठ जाता था, फिर भी इनकार कर देते थे। अलमीरा दूर बैठी फ़ोन पर धमकी दे रही थी और मुजाहिद खान दरवाजे पर होती हुई दस्तक से डर गए थे, क्योंकि जानते थे किसके शय पर बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी ये। मैं भी जा रही हूँ नमली मीरा, बहुत देर बाद बताया। अमर के साथ? काश उनके साथ जा सकती। लब भीजकर आंसुओं को बहने से रोका। अमर को मालूम है तुम फिर से भाग रही हो। वो हंस पड़ी, फिर हंसते हंसते रुखसार भीग गए। खुबानी का दरख्त तले बेंच पर बैठकर उसने कांपते हाथों से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। बार बार आंखों में उमड़ती हुई नमी को पीछे धकेला। वो जो करने जा रही थी आसान तो हरगिज नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी अलमीरा ने। सबको खाकिस्तर करके, सुर्ख आंखें, लाल नाक के साथ वो HOD के ऑफिस में आ गई। रेजिग्नेशन लेटर उनके मेज पर रखते हुए हाथ लर्जे। लेकिन क्यों अलमीरा? वो हैरान हुए। पर्सनल रीजंस हैं कुछ, भर्राई हुई आवाज में कहती वो सामने बैठे HOD का दिल मोम कर गई थी। लीव ले लें, रिजाइन मत करें। मुखलिसाना मशवरा। प्लीज सर, सेमेस्टर फ्रीज की रिक्वेस्ट भी अप्रूव कर दें। आगे बंदे हाथ बाहम मिलाए, दाएं हाथ के नाखून बाएं हथेली में घुपे। ओके, मैं कर दूंगा, लेकिन ये हफ्ता है आपके पास। आप किसी भी वक्त वापस आना चाहें, मोस्ट वेलकम। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अपने बरसों की मेहनत उस मेज पर छोड़कर शिकस्ता कदमों से चली आई। इमारत के दाखिली जीने अबूर करते हुए हर मंजर धुंध में लिपट गया था। वो लब सख्ती में भीजे हैंडबैग पर गिरफ्त सख्त करके जीने उतर गई। उसका ऑफिस, उसके शागिर्द, उसके हमजमात, कैफे, ए ब्लॉक की सीढ़ियाँ, खुबानी का दरख्त, सब पीछे रह गया। वो रोना चाहती थी बहुत सारा। उसे एक कंधा चाहिए था, एक मेहरबान हाथ। मरकजी दरवाजे पर खड़े होकर उसने मुड़कर कॉमसेट्स को देखा। उसकी जिंदगी का एक बाब यहीं खत्म हुआ। हर उस लड़की की जिंदगी का ये बाब यूं ही खत्म होता है जिसके घर वालों को उसकी जरूरत होती है। जैन गहरी नींद में था जब दरवाजे पर दस्तक दी गई। रावलपिंडी की ठिठुरती हुई सर्दी में बिस्तर से निकलना अजाब लगा था। जब से एबटाबाद से आया था बुखार में मुब्तला था। 2 दिनों से रेस्टोरेंट भी नहीं गया था। मुसलसल करवटें बदलने के बाद मुश्किल से नींद आई थी। दरवाजे बजाने वाले के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दरवाजा दोनों हाथों से धड़ाधड़ पीटा गया। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ बेड से उतरा और नंगे पैर ही दरवाजे की तरफ चल पड़ा। माथे पर तेवरी डाले दरवाजा खोला। कुछ सख्त कहना चाहता था मगर सामने नजर पड़ती ही झटका। गुलबानो दुनिया की आखिरी लड़की थी जिसे वो अपने दरवाजे पर देखने की उम्मीद करता था। 5 फुट 3 इंच के लोग क्या नापेद हो गए हैं जो घंटी इतनी ऊंची जगह पर लगाई है। दोनों हाथ को कोलों पर रखे हुए वो बिफरी हुई खड़ी थी। जैन ने दरवाजे से सर निकाला, गर्दन घुमाकर दीवार पर लगी घंटी को देखा, फिर सरता पैर सामने खड़ी गुलबानों को। बालों को ऊंची पोनी में बांधे, घुटनों तक आते हुए स्वेटर की जेबों में हाथ डाले। वो आज से पहले इतनी छोटी क्यों नहीं लगी थी। एड्रेस कैसे मिला मेरा? भवे मिलाई पूछा। तुम्हारे मैनेजर ने दिया है। मैंने बताया कि मैं गुलबानो हूँ, जैन की फुप्पी की बेटी। उसने फ्री में ये खाना भी दिया है जो कि मैंने अभी ही लंच किया था, तो तुम ये रख सकते हो। हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। शक से उसे देखता हुआ जैन दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए चौखट से टेक लगा गया। ताफुन ज़्यादा सांसें हैं मेरी, नीच तरीन इंसान हूँ। तुम जैसे फरिश्ता सिफत लोग इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं मुझ पर? इतने कम अकल तो नहीं हो क्या समझ ना सको? माजरत करने आई हूँ। सर उठाए खुद से ऊंचे जैन को देखा। बिखरे बाल माथे पर गिर रहे थे, आंखों में नींद की सुर्खी थी। बुखार ज़्यादा चेहरा से नकाहत झलक रही थी। 20 ट्राउजर, सफ़ेद स्वेटर में मलबूस वो आज से पहले कभी इतना ऊंचा क्यों नहीं लगा? तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा जलील करने को, तो मुझसे माजरत करके दोबारा मुझे जलील करने का इरादा रखती हो? खान का लिहाज ना होता तो खुदा की कसम ऐसे भर भर कर तंज करने पर मुंह तोड़ देती तुम्हारा। और ये माजरत, मैंने अपने बाप को कभी माजरत नहीं की, तुम्हें क्यों कहने आई? वो तड़की। बहुत काबिले फ़ख्र बात है। इस सजाइए निगाह उस पर उछालकर अंदर की तरफ बढ़ गया। गुलबानो 2 पल तेज में मुब्तला वहीं खड़ी रही, फिर बैग उठाए तनफन करती हुई अंदर चली आई। तुम सच में खान के लिए घर छोड़ आए हो? सोफे पर टिकते हुए उसकी पुष्ट को तका।
जो किचन में खड़ा हुआ चाय बनाने लगा था। तुम माजरत करने नहीं खान भाई के लिए आई हो? हाँ तो बताओ अब क्या करोगे? लिटाई से टांग पर टांग चढ़ाई। जैन ने गर्दन पीछे को गिराकर आंखें बंद करके गहरा सांस भरा। मीडिया में बस ये बताना कि मैं बाबा का सगा बेटा नहीं हूँ, काफी नहीं होगा? मेरी माँ से शादी क्यों की? उस शादी से क्या कुछ हासिल किया? हमें सबके सबूत ढूंढ कर पेश करने होंगे। और जैन इस मामले में इतना कमजोर था कि मैं के बजाय हम पर आ गया था। इतना अरसा गुजर चुका है, मामू ने हमारे लिए सब कुछ थाल में सजा कर तो नहीं रखा होगा। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते वो मामू के खिलाफ गवाही दे? मेरी माँ को रुसवा किया बगैर हम खान भाई की गर्दन नहीं छुड़वा सकते। बड़ी आस से उसे देखा कि वो चुप कर गई। चंद पल रुकी, फिर सर हिला दिया। हम मामू के खिलाफ सबूत ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन जब तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो खान भाई को भनक पड़ जाएगी। वो तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसका हल भी सोच लिया है। चाय तैयार हुई तो वो कप ट्रे में रखकर सोफों के पास चला आया। एक कप गुलबानो को पकड़ाया, दूसरा खुद थामे उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। मुझे नहीं मालूम मेरा असल बाप कौन है, खान भाई कहते हैं उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है वो ये जाने बिना चैन से नहीं बैठे होंगे। माँ से शादी के बाद बाबा ने क्या कुछ हासिल किया, खान भाई इस सब से भी बाखबर है। वो बस मुझे इस सब से दूर रखने के लिए खामोश हैं। हमें उनके पास बाबा के खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। गुलबानो चाय भूलकर तजस्सुस से आगे हुई। कैसे लोगे उनसे वो सब? भाभी, दुनिया में सबसे ज्यादा अमर की परवाह अलमीरा को है। वो खान भाई के करीब भी है, उनके लिए वो सब लेना बहुत आसान होगा। बड़ी बड़ी आंखें बुझ सी गईं। वो सर को जंबिश देकर वापस खिसक पीछे हो गई। कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता वो खान को बताए बिना सांस भी लेती हैं। उसमें और तुम में ज्यादा फर्क तो नहीं। दिल जलाकर सर झटककर टांग पर चढ़ी टांग को हिलाने लगी। तो खान भाई के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो भी जरूर करेंगी। जैन ने मुस्कुराहट को आंखों तक महदूद रखते हुए चाय का कप लबों से लगाया। सबका दिल जलाने वाली गुलबानो किसी के जिक्र पर सबसे ज्यादा जल जाती थी। अलमीरा ताया के घर जाने के बजाय एसएसपी हाउस आई थी। गो के घर में मुलाजिम मौजूद थे, मगर एक ही नज़र डालने से मालूम हो रहा था कि मालकान यहाँ का रास्ता भूले हुए थे। उसने मुलाजिमों को छुट्टी देकर बानो को बुला लिया था। वो लॉन्च में खड़ी थी जब बानो भागकर अंदरूनी दरवाज़ा अबूर करके उसके गले में बाहें डालकर झूल गई थी। आप ठीक हैं? बाजू टांग सब सलामत? बानो ने सरता पैर उसका जायजा लिया तो अलमीरा ने बरहम निगाहों से उसे घूरा। बानो खिलखिलाकर हंसी, दोबारा उसे लिपट गई थी। बहुत याद आती है मुझे आपकी, बहुत ज़्यादा। वो प्यार से बानो की पुश्त थपकती गई। अगले लम्हात में वो दोनों अमर के कमरे की सफाई कर रही थी। बानो झाड़ पोछ करते हुए मुसलसल बोल रही थी। बेड की चादर बदलती हुई अलमीरा उसे सुनती गई। अब आप लोग यहाँ रहेंगे? नहीं, खाना को मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। रात ठहरने का इरादा हो जाए तो कमरा तो साफ हो ना। वो अलमारी खोले अमर के कपड़ों का जायजा ले रही थी। यहीं शिफ्ट हो जाएं, अच्छा खासा घर है। कब तक दर बदर रहेंगे आप दोनों? बहुत जल्द हम अपने घर शिफ्ट होंगे, फिर मैं एक बड़ी दावत रखूंगी और सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगी। आप मुझे अपने घर काम पर तो नहीं रखेंगी, क्योंकि आपको घर में मुलाजिम नहीं पसंद। अपने बच्चों की मेड रख लीजिएगा, मैं 1 साल मजीद इंतजार कर सकती हूँ। अपने बच्चे हम खुद पाल लेंगे। अमर की शर्ट को तह लगाते हुए बेसाख्ताई कहकर वो चौंक सी गई थी। हमारा घर, हमारे बच्चे, हम। अलमीरा की लुगत में ये नया इजाफा अमर सुन लेते तो दिल थाम लेते। उनके महजूज और मुतहिर तासुरात तसव्वुर करते हुए वो लजाई। थोड़ी देर बाद वो दोनों किचन में थीं। बानो उसके लिए कॉफ़ी, अपने लिए चाय के साथ दीगर लवासमात तैयार कर रही थी, जबकि अलमीरा स्टूल पर बैठी अमर को अपनी यहाँ आमद की खबर दे रही थी। अच्छा बताएं ना, आपने इतने अरसे में क्या किया? आपको मेरी याद तो आती होगी। फ्राइज की प्लेट अलमीरा के सामने काउंटर पर रखी। फ्राइज मुंह में रखते हुए अलमीरा ने ठहर कर सोचा, फिर सर नफी में हिला दिया। हाँ, साहब जी के होते हुए हम जैसों को मुंह क्यों लगाएंगी आप? सर झटक कर वो दीगर लवाजमात अलमीरा के आगे रखने लगी। आप शुरू से ऐसी थी, साहब जी सामने आते थे तो दुनिया फामिया से बेखबर हो जाती थी आप। बस अमर खान। अलमीरा उसके कुलने से महजूज होते हुए अब नगेट्स उठा रही थी। साहब जी आपका ख्याल तो रखते हैं ना? गर्दन घुमाकर उसे देखा, उसने सर हिला दिया। और आप उनका ख्याल रखती हैं? सर नफी में हिला। मैं उन्हें बहुत हर्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप कर ही नहीं सकती। उन्हें देखकर जीने वाली लड़की कैसे उन्हें हर्ट कर सकती है? मैंने वो दिन देख रखे हैं अलमीरा बीबी, जब आप उनके पैगाम का घंटों इंतज़ार करती थी। उनसे एक मुलाकात आपके लिए अमृत का काम करती थी।
आपकी कच्ची उम्र की मोहब्बत वक्त के साथ पक्की होती देखी है मैंने। आप खुद को मार सकती हैं, साहब जी को हर्ट नहीं कर सकती। गाड़ी जिन्ना अंडरपास में दाखिल हुई थी, उसे अपने आगे खड़ी गाड़ी की विंड स्क्रीन के पार अमर की झलक नजर आई। बगैर किसी अगली सोच के स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया गया। चिकन पीस उठाती वो सर झटक गई। बानों के हवा में मारे गए तीर निशाने पर लगे थे। आप किरणबाजी से मिलने जाती हैं? बानों से खामोश नहीं रहा जाता था। राइस पर केचप लगाती हुई अलमीरा ने सर को जंबिश दी। वो उसे किरण के अलावा इशल का भी बताने लगी। बानों की चाय और अलमीरा की कॉफी का कप खाली हो गया। असर के बाद मगरिब हो गई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, फिर साथ बैठकर खाया। 10 बजे बानो चली गई थी। तन्हाई मौसर होते ही हर वो बात मूरत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसे नजरअंदाज करने के लिए वो यहाँ आई थी और बानो को भी बुलाया था। सोफे पर पाँव ऊपर रखकर बैठी अलमीरा ने सर घुटनों में दे दिया था। थका देने वाले दिन के बाद अमर रात 12 बजे घर आए थे तो अलमीरा को लाउंज में सोते पाया। सोफे के बाजू पर सर टिकाए, टांगे पेट में मिलाकर वो बैठे बैठे सो गई थी। अमर ने करीब आकर हाथ में पकड़ी हुई अपनी जैकेट एहतियात से उस पर डाली। कितनी ही देर ठहर कर उसे देखते हुए अपनी थकन उतारते गए। अमर के सफ़ेद ट्राउजर और क्रीम हुडी में मलबूस, दाएं तरफ की मांग निकालकर बाल कुछ पुष्ट पर कुछ दाहिने कंधे पर गिराए हुए, दिल गदाज अलमीरा। अमर ने झुककर उसके बालों पर लब रखे, फिर उसे वहीं छोड़कर कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आए, क्रीम ट्राउजर स्वेटर पहने, नीम नम बाल माथे पर बिखरे, वो किचन में चले आए थे। काउंटर पर खाना रखा था, मगर वो किसी चीज को छुए बिना चाय बनाने खड़े हो गए थे। चाय पीकर बत्तियां बुझाकर लाउंज का रुख किया। आराम से अलमीरा का बराबर में बैठे, कोहनी सोफे के बाजू पर टिकाकर बंद मुट्ठी पर गाल टिकाए नरमी से उसे देखते गए। मीरा, उसके चेहरे पर झूलती हुई बालों की लट कान के पीछे उड़सी। वो हल्का सा कसमसाकर वापस सोती बनी। मीरा खानम, उनकी उंगलियां उसके रुखसार से मिस हुई। आ गए आप? मुंदी मुंदी सी आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर उनके कंधे पर सर टिकाकर वापस सो गई। कमरे में चलें? हौले से उसके बाल सहलाए। कोई जवाब न आया। अमर ने चेहरा जरा सा झुकाया तो वो सो चुकी थी। वो उसे जगाने का इरादा तर्क करके मुतबादिल पर अमल का सोच रहे थे कि रुखसार पर गिरी हुई पलकों में जंबिश हुई। इतनी देर क्यों लगाई? काम में फंस गया था। खाना खाया तुमने? उसने सर को जंबिश देने पर इक्तफा किया। अमर खामोशी से उसके बालों में उंगलियां चलाते गए। उनके लम्स से दिल पर बोझ की मानिंद मुसल्लत बहुत सी अलम यूं ही फिसलते गए, जैसे सर्द रात कितने ही पल। हम अपना घर कब लेंगे? गैर मुतवक्का सवाल पर अमर ने चौंक कर उसे देखा। वो यूं ही उनके शाने पर सर टिकाए हुए थोड़ी जरा सी ऊंची किए अब खुद पर ठहरी हुई उनकी आंखों में झांकती थी। मैं थकी हुई थी, ताया या उनके घर वालों का सामना नहीं करना चाहती थी, तभी यहाँ आ गई। मगर बानो के जाने के बाद डर लग रहा था कि ताया फिर से घर पर फायरिंग न करवा दें। अपने घर में फहद से और अम्मी से डर लगता था। हवेली का सोचकर कुत्ते याद आते हैं, और अपार्टमेंट में ताया आग लगवा देंगे। हम अपना घर कब बनाएंगे जहाँ आपको और मुझे कोई खौफ ना हो? सोई सोई आंखों में अब नींद के साथ नमी भी हिलकोरे ले रही थी। अमर ने हाथ से उसके मुतवर्रम पपोटे को छुआ। घर बनाना है? उनकी भारी आवाज समात में टकराई तो टिप से एक आंसू रुखसार पर गिरा। वो सर अस्पात में हिला गई। घर चाहिए, मैं बहुत थक गई हूँ खाना, बहुत ज्यादा। आवाज भर आई। मुझे लगता था मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती, और किसी 2 कमरे के फ्लैट में खुद को तन्हा तस्वुर करके मेरा दम घुटता था। हमेशा यही लगा सारी जिंदगी मेरे पाँव इन बेड़ियों से जख्मी रहेंगे जो माँ ने डाली थी। बावजूद इसके मैंने तारीख से तारीख रात में भी अपने घर के ख्वाब देखे हैं। उसकी नजरें अमर के कुशादा कंधों पर टिक गईं। उठती झुकती पलकें, आंखों में तैरती नमी, लाल होती नाक, चेहरे पर छाया हुआ मलाल। अमर अपनी जान भी गिरवी रखकर उस लड़की को हर दुख से बचा लेंगे। कैसा घर चाहिए? उस पल अंदाजा हुआ था कि अलमीरा अम्मा की डाली गई बेड़ियों से आज़ाद हुई थी तो अमर को भी तारीख राहदारियों में रोशनी का हाला नजर आ गया था। लगा कि अलमीरा हर वो चीज़ गिनवाती जाएगी जो उसे उसके घर में चाहिए, तो अमर भी बाप के बिछाए हुए जाल से निकल आएंगे। मुझे बड़े बड़े पुरतेश मकानों और हवेलियों की चाह नहीं, मुझे यंग बस्ता रातों में गर्म घर की तलब है, जहाँ से कोई मुझे निकाल ना सके, कोई मुझ पर चीखे नहीं। उस घर में कह के गूंजे, बच्चे किलकारियाँ भरें और वहाँ रातें रोते हुए ना कटें। चोट लगे तो मरहम मुयस्सर हो, तकलीफ हो तो हाथ थाम ले कोई।
मुझे कमज़ोर, सतही, नाजुक लड़की कहे, लेकिन मुझे गिरने के बाद खड़ा होने के लिए सहारा चाहिए। मैं अपने आंसू खुद क्यों पोंछूं? मैं क्यों अपनी सिसकियां दबाऊं? मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए, रोने के बाद चॉकलेट्स चाहिए। मैं बहुत अकेली रह चुकी हूँ, मज़ीद नहीं रहना। मैं बहुत स्पॉइल्ड लड़की हूँ, मुझे पैम्पर करने वाला कोई तो हो। और वो जो कोई था वो सांस रोके हुए उसे सुनता था। पुरहिद्दत नजरें उसके चेहरे के तवाफ कर रही थी। अगर वो उनके दिल के मकाम पर हाथ रखती तो हमेशा की तरह बहुत तेज धड़कन महसूस करती। मुझे घर के साथ घर वाला भी चाहिए, यानी आप। जाड़े की एक बस्ता रात धुंध में भीग रही थी, मगर उन दोनों ने ये धुंध अपनी आंखों के आगे नहीं आने दी थी। चेहरे वाजे थे, बिल्कुल साफ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि घर का मर्द होने के नाते आप खुद को बेअंत जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दें। खुशियों के साथ तकलीफ, दुख, दर्द हम मिलकर बांट लेंगे। आपको खुद को किसी सख्त खोल में छिपाने की ज़रूरत नहीं। आप रो भी सकते हैं, तकलीफ हो तो कह सकते हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपका बहुत ख्याल रख सकती हूँ। वो पहली थी जो उन्हें बहादुरी की सख्त खोल से निकालना चाहती थी। बस वही थी जिसे अमर के दिल की परवाह थी। वही अलमीरा जो आहिस्ता से अमर के स्वेटर पर आई शिकनों को हाथ से दूर कर रही थी। और अगर बेक वक्त दोनों को गुस्सा आ जाए तब हम एक दूसरे को स्पेस देंगे। गुस्सा ठंडा होगा तो बैठकर मामला सुलझाएंगे, कोई भी बात दिल में नहीं रखेंगे। अनकही दिल के नहा खानों में पनाह बातें रिश्तों में गैर महसूसी दरार डालना शुरू कर देती हैं। टोकने के बजाय प्यार से बैठकर समझाने में फ़ायदा है। पब्लिक में कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए, हमें एक होकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी बात बुरी लगे बिला झिझक कहना और खुद को मुसल्लत बिल्कुल नहीं करना। ज़बरदस्ती करने से अच्छा खासा मामला भी उलझ जाता है। तहम्मुल से, प्यार से सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मैं तो समझ लेती हूँ। वो रुकी, आहिस्ता से उनका हाथ थामा। प्यार से समझाएंगे ना खाना? एहसास की गर्मी लहजे में पिघली, चेहरे के तासुरात फोम से ज़्यादा नरम हुए। अमर धीरे से सर अस्बात में हिला गए। वो भारी सांस लेती सर सोफे के बाजू पर टिका गई, दोनों हाथ घुटनों पर रखे सामने देखती गई। सुबह घर देखने चलें? जिस सहलमंदी से सवाल किया वो हंस पड़ी, फिर हंसते हंसते सर घुटनों पर टिकाकर सिसक कर रो दी। अमर ने उसके शाने पर बाजू फैलाकर उसे अपने हिसार में समेटा था। हिल रोड पर एक घर बहुत अरसे से नज़र में रखा हुआ है। बड़ा है, बाग भी है और बरामदे में झूला रखने के लिए बहुत जगह भी। तुम्हें ओपन किचन पसंद है ना? उसके किचन का कोई दरवाज़ा नहीं। ऊपर जाने के लिए जीने बाहर से हैं। 3 कमरे नीचे, 2 ऊपर हैं। हर कमरे में अटैच बाथरूम और मास्टर बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट भी है। तुम्हें मेरी वार्डरोब पसंद है ना? आराम से सेट हो जाएगी वहाँ। तुम छत पर बैठकर मेरे साथ चांद देखना मिस करती हो ना? मैं तो बहुत करता हूँ। उस घर में छत पर बैठने की जगह भी है, हम वहाँ से सारा हिल रोड देख सकते हैं और चांद भी। अमर बोलते जा रहे थे और अलमीरा की सिसकियों में इजाफा होता गया। वो प्यार से उसका सर थपकते थे, तशफी के अंदाज में पुष्ट सहलाते थे। दीवारों पर रंग गहरा है, मगर हम सारा घर रेनोवेट करवाएंगे, हल्के और ठंडे रंग इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, मास्टर बेडरूम में कोई सोफा नहीं होगा, अभी ही बता रहा हूँ। और सुनो, मैं हमारे बेड वाली दीवार पर हमारा एक फ्रेम लगवाना चाहता हूँ। इसके लिए वलीमा करना होगा, क्योंकि शादी के बाद हमारी एक भी तस्वीर नहीं है। कैफे वाली सेल्फी, उसमें तुम प्यारी लग रही हो, मेरा चेहरा थोड़ा भरा भरा लग रहा है। लब दांतों में दबाकर सिसकते हुए उसने अमर के स्वेटर को मुट्ठी में भींचा था। और क्या चाहिए घर में मेरा? उसकी आवाज़ सा निकली। मुझे हमारे घर में बच्चे भी चाहिए। सच कहूँ तो अब लगने लगा है कि 2 काफ़ी नहीं होंगे, कम से कम 4 हो। गेस्ट रूम ऊपर शिफ्ट करके नीचे 2 कमरे बच्चों के लिए सेट करेंगे। और हाँ, हम सब रात को हमारे कमरे में कहानी सुनेंगे। हम अलग से लाइब्रेरी बनवाएं या कमरे में शेल्फ चल जाएगी? अलग से, ऊपर एक कमरा और है ना? हथेलियों से नम गाल रगड़कर उनकी आंखों में झांका तो अमर मुस्कुराए। उधर मैं तुम्हारा वर्क सेटअप बनाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारा हाई पावर डेस्कटॉप, मॉनिटर और रॉकिंग चेयर। दूसरी तरफ लाइब्रेरी बनवा देंगे, ठीक है? वो सर हिला गई। और किताबों के पास फ्लोर कुशन भी चाहिए, बड़ा हो, हम वहाँ बैठकर पढ़ेंगे। भीगी गुड़मुड़ होती आवाज़। हाँ, वो भी लेंगे। और कुछ? सर नफी में हिला, उसे अपने बाजू के हल्के में कैद किए। अमर उसके सर पर थोड़ी टिकाए। वो गीली सांसें अंदर लेती हुई आंखें मूंद गई। सुबह चलेंगे ना? वादा रहा।
अमर अलमीरा से किए गए वादे हर हाल में निभाते थे। शेर बता रहा था, आपने पहले भी एक घर बनाया था, आप तब मुझे लेने क्यों नहीं आए थे? उसके बालों में हरकत करते हुए अमर की उंगलियां साकित हुईं। वो उनका ठहरना महसूस करती बोलती गई, आप तो पीछे ना हटते, आते ना कि अलमीरा चलो, घर का सामान लेना है, रूम फ्रिज भरना है, उसका बंदोबस्त करो। मोटी मोटी चीजें ले ली हैं, छोटी छोटी चीजों की मुझे समझ नहीं, तुम थोड़ा सा साथ दोगी? क्यों नहीं किया ऐसे? आपको तो मुझे मनाना आता है ना, मेरे सारे डर खत्म कर देते, जानते हैं जिद्दी हूँ, अपनी मर्जी जमाते ना। मैं तुम्हारी सालगिरह पर आना चाहता था, लेकिन तब तक घर राख हो चुका था। उसने तकलीफ से अमर के गले में उभर कर मालूम होती हुई गिल्टी को देखा, फिर कत्थई आंखों में रकम दर्द को हर्फ ब हर्फ पढ़ा। अगले लम्हे में वो दोनों बाजू अमर के गर्दन में हमाइल कर गई, थोड़ी उनके कंधे पर टिकाए, होले से उनके बाल सहलाए। आई एम सॉरी, हर उस वक्त के लिए जब आप तकलीफ में थे और मैं आपके पास नहीं थी। आई एम सॉरी खाना, आपको बहुत सारे दुख अकेले झेलना पड़े। पुलिस मुकाबलों में जब जब वो जख्मी हुए थे, तब की तवील बुखार ज़दा सी तकलीफ दे रातें अंजाम को पहुंची और अमर सुबह का जामनी आसमान देख रहे थे। महसूस हुआ कि वो कोमा से जागे हैं और पहलू में अलमीरा हाथ थामे खड़ी है। सब आपको हर्ट करते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है मैंने आपको। मैं मदावा करना चाहती हूँ, मुझसे और दुनिया से आपको मिले हर दुख का। और वो महसूस कर सकते थे अलमीरा आहिस्ता से अमर का सर थपक रही थी। वो अमर से अमर का गम बांटना सीख रही थी। मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखना चाहती हूँ, आपके लिए खाना चख सकती हूँ, खुद बना सकती हूँ, और आपको नींद नहीं आएगी तो हम साथ जाग लेंगे, हम किताबें पढ़ सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, वरना बातें करते रहेंगे। आपको अंडे से एलर्जी है तो हमारे घर में कभी अंडे नहीं आएंगे। हम घर में मुलाजिम नहीं रखेंगे, क्योंकि मुलाजिम ताया और ताई के कहने पर आपको मारने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत इज्जत दूंगी खाना, वो इज्जत जो आप डिजर्व करते हैं। अलमीरा के मुंह से इज्जत की बात बहुत अच्छी लगती थी अमर को। वो हमेशा उन्हें मौत पर ठहराती थी, जैसे हमेशा से जानती हो कि अमर को मोहब्बत की नहीं इज्जत की तलब है, जिससे हमेशा महरूम रखा गया था। खुदा आपको बहुत खुशियों से नवाजे खाना, आप बुराई से महफूज रहें, आपकी खामियों पर पर्दा पड़ा रहे और खूबियों का जिक्र हर दूसरी ज़बान पर हो, आपकी तमाम ख्वाहिशात तकमील को पहुँचे, सारे ख्वाबों की ताबीर मिले, आप हर मैदान में फाते ठहरें, इज्जत, मोहब्बत और सुकून आपके कदमों में आ बैठे। घर मुबारक हो अमर खाना। बहुत बद्दुआएं समेटी थी अमर ने। अलमीरा बहुत फराग दिली से उन्हें दुआएं देती थी, और इस बार उसने मोहब्बत की बात भी की थी, यानी अपना जिक्र किया था। उनके गर्दन के गिर्द गिरफ्त ढीली करके वो जरा सा पीछे हुई। अमर अलमीरा के आंसुओं से तर चेहरे को तकते थे और वो उनके आंखों में पिघलती हुई नमी को चुनना चाहती थी। इतना प्यार देती हो तो दिल डर सा जाता है कि अमर साहब खैर हो, जोजा मोहतरमा फिर से कोई नया कारनामा सर अंजाम देने जा रही हैं। वह भीगा सा हंस पड़ी, हंसते हुए सरनफी में हिलाया। अब आदत डाल लें आप इतने प्यार की, पक्की बात है? उसने सर हिला दिया। अमर गहरी नजरों से उसे देखते गई। कत्थई आंखों से झलकती हुई हिद्दत की ताब ना लाती अलमीरा नजरें झुका गई थी। डेट पर चलें? गर्दन घुमाकर दीवार पर नसब घड़ी में वक्त देखा, फिर अमर को। रात के 1 बजे? आइंदा वक्त देख कर रोना, क्योंकि रोने के बाद कुछ स्वीट तो लाजमी है। उसका हाथ थाम कर खड़े हो गए। मैं हुलिया दुरुस्त कराऊं? वो जाने लगी थी कि अमर ने उसकी हुडी में हाथ डालकर उसे रोका था। गाड़ी में रहेंगे, चलो अब। उसी तरह उसकी हुडी से खींचते हुए आगे बढ़ गए। ये क्या तरीका है? बच्ची नहीं हूं मैं, हाथ हटाएं, छोड़े मुझे अमर। वो अपनी हुडी से उनका हाथ हटाने की सही करती हुई बिदकती गई, मगर बेसूद। हिल रोड पर एक घर है। अमर ने अरसे से जिस घर पर नजर रखी हुई थी, रोशन उजली उजली सी सुबह हिल रोड की कुशादा और ऊंचाई को जाती हुई साफ सुथरी गलियों से गुजरती सफेद लैंड क्रूज। बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए अमर और उनकी किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती हुई अलमीरा। गाड़ी घर के बाहर रुकी। उसने दाएं हाथ से अमर का बाजू पकड़ा, महबूबाना नजरों से उन्हें देखा, फिर घर की दहलीज पार कर ली। वसी रकबे पर फैला लॉन, जिसकी छोटी दीवारें सब्जे में जकड़ी हुई थी, छोटा सा पोर्च, बस इतना कि बस वही गाड़ी आ सकती थी जो वो दोनों इस्तेमाल करते थे। अमर की जाती गाड़ी, पहले सफ़ेद SUV और अब लैंड क्रूज।
बरामदे से गुजरकर वो किचन में सिंक के पास नल खोले खड़ी थी और अमर उसे यहाँ के पानी, बिजली और गैस की तफसीलात दे रहे थे। खिड़की पर ब्लाइंड्स नहीं, पर्दे लगाएंगे, बेड इस तरफ रखेंगे, यहाँ ड्रेसिंग टेबल और यहाँ सोफे। मास्टर बेडरूम में खड़ी वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी कि अमर की तंबी निगाहें खामोश करवा गई। खबरदार, जो सोफे की बात की तो सिंगल सोफा रखेंगे, उस पर तो नहीं सुलाऊंगी ना आपको। वो मिनमिनाई, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। आप बिला वजह डर रहे हैं, मुझे अब कौन सा तकिए पर नींद आती है। बेसाख्ता जबान फिसली। अमर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए हिस्स उठाती हुई निगाहों से उसे देखा तो शताबी से भाग खड़ी हुई। हम इनमें से एक कमरे को डाइनिंग रूम बना सकते हैं। वो अब दूसरे कमरे में झांक रही थी। मेरे बच्चों के कमरों से दूर रहो जंगली बिल्ली, डाइनिंग टेबल किचन में रखेंगे, मेरे तो जैसे कुछ लगेंगे ही नहीं। मुंह बसोर कर बड़बड़ाई। अमर सुनने से कासिर रहे। आप अभी से उनके लिए 2 कमरे रख रहे हैं, घर खाली खाली महसूस होगा। वो उन्हें कायल करने के लिए उनके पीछे दूसरे कमरे में चली आई। खाली क्यों? बेड, ड्रेसिंग, अलमारी सब रखेंगे। वो तो रखेंगे, मगर कोई रहेगा तो नहीं ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आते ही वो कौन सा इतने बड़े हो जाएंगे जो अलग कमरों में रहेंगे। एक को भी कम से कम 7-8 साल तो लगेंगे। तुझ बुजुर्ग से उन्हें देखते हुए चेहरे पर लाली बिखरती गई और गाल तपते गए। यानी ठान ली है कि इस कमरे को डाइनिंग रूम बनाना है। वो अब थोड़ा थोड़ा मानने लगे थे। अलमीरा ने सर इस्पात में हिला दिया। 7-8 साल बाद मैं अपनी मर्जी करूंगा। नहीं, फौरन से उन्हें टोका। अमर ने आंखें सुकेड़ी। एक को 7-8 साल तो दूसरे को मजीद 7-8 साल। आप 15 साल बाद अपनी मर्जी कीजिएगा। फर्श को घूरते हुए सोच सोच कर कहा। अमर मुस्कुराहट दबाए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे कि वो भाग गई। आपको बागबानी आती है खाना? वो दोनों लोन में खड़े थे। हाँ, सीखनी है। पुरशौक निगाहों से उसे देखा जो तेजी से सर हिला गई। खुबानी का दरख्त भी लगाएंगे यहाँ पर और उस तरफ सीटिंग रखेंगे। आपको बारिश में भीगना पसंद है ना? मैं वहाँ सोफा पर बैठकर आपको देखूंगी। मैं भीगा तो आराम से बैठने आपको भी नहीं दूंगा मीरा जी। अलमीरा ऊपर को जाते जी ने चढ़ने लगी। अमर पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए उसके पीछे हो लिए। खाना आपको पता है, हमारी लाइब्रेरी में हर किताब की 2 कॉपीज होंगी। ऐसे क्यों? अमर अनजान, अमर मासूम। मुजाहिद चचा जो किताबें मुझे भेजते हैं, आपके पास वो सारी हैं। चचा आपसे मशवरा करते हैं क्या? इस्तफामिया नजरें अमर के पुष्ट पर टिकी जो दीवार पर लगे कबर्ड को खोलकर देख रहे थे। नहीं, हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। हैरत है, इतना भी क्या इत्तेफाक? हाँ, इतना भी क्या इत्तेफाक कि तुम्हारे चहीते चचा की भेजी हुई ईदी में भी मेरी पसंद झलकती है। वो अब कमरे की खिड़की खोले हुए नीचे लॉन में झांक रहे थे। है ना? मैं खुद यही सोचती थी, उन्हें कैसे पता मैं मेहरून? वो बोलते बोलते टिटकी, माथे पर बल डाले उलझकर अमर को देखा जो अब दूसरे कमरे में जा रहे थे। आपको कैसे मालूम चचा मुझे ईदी भेजते हैं? वो मिट्टी में अटी कागजात से लदी हुई बोसीदा अलमारी के पास खड़ी थी और अमर वॉशरूम के खुले दरवाजे के पार सिंक में पानी खोल रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम कि ईदी चचा भेजते हैं? अमर मुड़े। उन्होंने कभी इनकार तो नहीं किया। मैं शुक्रिया के मैसेज भी। आपने उन्हें? अदरक होने पर अलमीरा का दिमाग भग से उड़ा। आबरू बेयकीनी से उठे। उसका हाथ अलमारी पर ठहरा। अलमारी में रखे कागजात के पलंदे सरके तो अमर तेजी से उसकी तरफ बढ़े थे। यकदम ही अलमारी कागजात समेत उस पर उलटने लगी। अलमीरा ने सख्ती से आंखें मीच ली। अमर उस पर झुके और कागज गिरते गए। भारी एनवलप्स उनकी पुश्त पर, कागज फर्श पर दाएं बाएं बिखरते गए। लकड़ी के चटकने की आवाज आई, फिर खामोशी। उसने डरी डरी आंखें खोलकर उन्हें देखा जो उस पर झुके फिक्रमंदी से उसे देखते थे। अलमारी वापस दीवार से लगा दी थी। ईदी और किताबें कौन भेजता है मुझे? सांसें नाहमवार हुई। मेरे अलावा कौन ऐसी जुर्रात कर सकता है? वो सीधे खड़े थे। उनके हथेलियां और बाल मिट्टी में अट गए थे। कपड़ों का भी यही हाल था। चचा भी नहीं? मैं क्यों नहीं? उसके चेहरे पर फूंक मारकर मिट्टी में मटियाली होती लट उड़ाई। लेकिन वो गुलाब, ताकि तुम्हें लगे मुजाहिद खान की तरफ से है, वरना तुम सब कुछ मेरे मुंह पर दे मारती। कितनी मासूमियत थी चेहरे पर। अलमीरा को रोना आया। मेरा दिल कराए मैं एक जोरदार मुक्का आपके मुंह पर मारूं। मैं हमेशा आप पर गुस्सा करती रही कि मेरी खैर खबर नहीं लेते। पहले तो आगा जानते हैं, उनसे पूछते होंगे। अब तो आए ना देखने बीवी को कि जिंदा भी है या मर खप गई। इतने बुरे लगते थे आप मुझे, बहुत सुनाती थी मैं आपको दिल में। और आप
आप बहुत बहुत बदतमीज इंसान हैं। तुमने खुद कहा था तुम मरते दम तक मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, फिर कैसे आता? ताज्जुब ही ताज्जुब। मैं तो कुछ भी बकवास करती हूँ, मैंने तो शादी से भी मना किया था, तब तो नहीं सुनी। हर जगह अपनी मर्जी करते हैं, जहाँ मैं चाहती हूँ आप अपनी मर्जी करें, वहाँ मेरी बात मान लेते हैं। इतने घूमे हुए क्यों हैं आप? घूमे हुए अमर थे या वो खुद को भी नहीं मालूम होता था चाहती क्या है ये लड़की। लेकिन अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, आना चाहिए था ये देखने कि बीबी की मरीज आज चल तो नहीं बसी। अलमीरा ने तब कर उन्हें घूरा तो वो मासूमियत से मुस्कुरा दिए। तुमने कभी मेरी भेजी गई चीजें इस्तेमाल तो नहीं की? सारे सूट वैसे के वैसे वार्डरोब में लटके हैं। शिकवा हुआ। क्योंकि मुझे नहीं पता था आपने भेजे हैं। आप नहीं थे मेहरून में मेरी तारीफ करने के लिए, दुपट्टा संभालने के लिए, तो किस दिल से पहनती? अब सब पहन कर दिखाना। उसके नाक पर लगी कलम की स्याही मिटाई, वो लज्जा से मुस्कुरा दी, फिर लब दांतों में दबा लिए। और सुनो, अब मैं तुम्हें कोई किताब नहीं भेजूंगा, अब हम बुक स्टोर डेट पर जाया करेंगे। उसने करीब होकर अमर के बालों से मिट्टी झाड़ी थी। और सुने, मुझे लगता है अब बहुत जल्द मैं आपसे कहूंगी कि गुलाब का बस एक फूल काफी नहीं। वो अब उनकी शर्ट से मिट्टी झाड़ रही थी और अमर महू होकर उसके गुलाल चेहरे को देखते गए। रेनोवेशन में कम से कम 1.5 माह लगेंगे। ये कर सकते हैं कि हम पहले नीचे की करवा कर शिफ्ट हो जाएं, ऊपर की आराम से होती रहे। क्या कहती हो? वो दोनों छत पर टांगे लटकाए हुए सारे हिल रोड पर नजरें जमाए हुए बैठे थे। हम अदीना खाला की सर्जरी के बाद शिफ्ट हो जाएं? क्यों? वैसे ही उनकी तबीयत जितनी खराब है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए फिलहाल। हम अदीना को भी यहीं बुला लेंगे, वो बस सर को जम्बिश दे गई। तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें इन गलियों में साइकिल चलाना सिखा सकता हूँ। गर्दन घुमाकर लाड भरी नजरों से उसे देखा। बच्ची नहीं हूं मैं, उसने नाक सुकेड़ी। बड़ी साइकिल लेकर दूंगा यार। वो हंस पड़ी, पुरशौक नजरों से गली में खेलते हुए बच्चों को देखती गई। गाड़ी चाहिए मीरा? नजरें अब नीचे पोर्च पर टिकी थी, वो सर नफी में हिला गई। मुझसे ड्राइविंग नहीं होती, मुझे पैसेंजर सीट पर बैठना ज्यादा पसंद है। फिर भी कभी मैं ना हुआ तो आना जाना कैसे करोगी? ड्राइवर रख लेंगे ना। ड्राइवर की वजह से आपको आसरा होगा कि मैं आना जाना कर लूंगी जो मैं नहीं चाहती। फिलहाल तो नहीं, मुझे आपसे ही पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए। वक्त तो निकालना पड़ेगा मेरे लिए। नाज से गर्दन अकड़ाई, कत्थई आके मुस्कुराती गई। खाना, एक घर की मिल्कियत के खाने में 2 नाम हो सकते हैं? मुमकिन है, मगर जरूरत नहीं है, घर तुम्हारे नाम करेंगे। मोहब्बत पाश नजरें उसके खुले बालों पर टिकी, जिनके लटों पर सरमा की सुनहरी धूप गिरती थी। मकान तो वो भी मेरे नाम था, घर नहीं बन सका ना। मैं चाहती हूँ मिल्कियत हम दोनों के नाम हो, फिर हम हमारे घर में रहेंगे। क्या कहते हैं? अमर क्या ही कहते, सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो दोनों बहुत देर वहां बैठे रहे। हिल रोड की कुशादा गलियां कितनी ही देर उनकी मौजूदगी से महकती रहीं। ये वो सुबह थी कि जब डिस्ट्रिक्ट जेल एबटाबाद से एक कैदी फरार हुआ था। हर दूसरी खबर में कैदी का नाम निहाल जहांगीर बताया जा रहा था। निहाल से अमर की मुलाकात आगाजान की वफात के बाद हुई थी। कौन था, कहाँ से आया था, उन्हें कभी उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों के दरमियान ताल्लुकात काम की हद तक थे। उसके बहुत से काले कामों की अमर को खबर थी। अमर ने अपने कई काम उसे निकलवाए थे, मगर कभी उसकी तरफ से आंखें बंद नहीं की। तभी उसे जेल भेजने में आसानी रही। दोस्ती के बाद दुश्मनी भी काम तक महदूद थी। मगर उस रात उन्हें मालूम हुआ था कि निहाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था उनका, बहुत ज़ाती ताल्लुक। उस रात जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तब रेस्टोरेंट से निकलते हुए उन्होंने अलमीरा को अंधाधुंध गाड़ियों की सिमत भागते देखा। छतरी उनके हाथ से छुटकर गिरी। खाने के शो पर वहीं गिराते हुए वो उसके पीछे लपके थे, जब उन्होंने उसे बाजू से खींचकर गाड़ी के आगे आने से बचाया था। उस रात जब आंसू तवातर से उसकी आंखों से बहते जा रहे थे, जब वो बेतरतीब टूटे फूटे जुमले बोल रही थी, तब उन्होंने उसके लरसते हुए हाथ से मोबाइल लिया। मोबाइल कान से लगाने पर उन्होंने जो कहकर सुना, वो दिलकश हंसी, वो पुरकशिश आवाज़ निहाल जहांगीर की थी। वो अमर बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। मुतहज्जिर होती अलमीरा को देखते हुए उन्हें अपनी आवाज़ गुम होती हुई महसूस हुई। बारिश और गाड़ियों के शोर में वो बस अलमीरा की सिसकियां सुन रहे थे। मुसलसल रोती, उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती। मोबाइल वाला हाथ पहलू में गिर गया। सारी दुनिया एक लम्हे के लिए आंखों के आगे घूम गई। गाड़ियों के हॉर्न दबते गए। शोर व गुल अलमीरा की सिसकियों में मद्धम होता गया।
बारिश में भीगती हुई गर्दन को मसलती वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उनका बाजू दबोचे हुए वो नीचे बैठती हुई चली गई थी। अमर सुन खड़े उसे सांस लेने को तड़पता हुआ देख रहे थे। गर्दन से लिपटी कोई नामालूम सी जंजीर अपने नाखूनों से हटाने की सही करती, मुट्ठियां भीज कर सड़क पर मारती, तकलीफ से आंसू गिराती। अलमीरा एक सांस, बस एक सांस के लिए इतना तड़प रही थी। कत्थई आंखों में उमड़ती हुई नमी ने अंग अंग से उठते हुए दर्द की गवाही दी। किसी पर भरोसा ना करने वाले अमर इतनी बड़ी गलती के मुर्तकिब कैसे हो सकते थे? वो निहाल को अपने घर तक रसाई कैसे दे सकते थे? मोबाइल धीरे से उनकी नम हथेलियों से फिसल गया। इस बार पलक झपकी तो आंखें जल उठी थी। समाज ने कुछ सुनने, दिमाग ने कुछ समझने से इनकार कर दिया। उनके कदमों में बैठी अलमीरा मरने को हुई थी। घर में आग लगने से पहले घर छोड़ दीजिएगा मम्मी। जैन के जाने के अगले दिन जरताज को कॉल मौसूल हुई थी कि अरसल मारा जा चुका है। जैन घर छोड़ गया था, रह गई वो जरताज। शहरियार उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी जैन घर छोड़ने की बात कर गया था। उनकी नींद हराम हो चुकी थी। हर वक्त कोई अनजाना सा खौफ जकड़े रखता था। साइड टेबल पर नींद की गोलियों का ढेर लगा था। हाथ लर्जिश का शिकार और हथेलियां भीगती जाती। मुलाजिमों से खौफ आता था। भूख मर गई थी। अमर से बात करना चाहिए, मगर वो अनसुनी करता निकल गया। 2 दिन बाद सरे शाम लोन में अलमीरा का इंतजार करती रही, मगर वो आई न अमर। बहुत तवील और तारीक रात थी वो। अपने ही घर में अपने ही शोहर से मौत की हद तक डरी हुई थी जरताज। हर शय मुंह खोले हुए सालिम निकलने को तैयार लगती थी। तुम लोग घर क्यों नहीं आए? रात के 3 बजे अमर को कॉल की थी। आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? सब खैरियत? मुझे डर लग रहा है अमर, प्लीज घर आ जाओ। किससे? शहरियार से, हाशिर से, मुलाजिमों से। और मुझसे? ताज्जुब से पूछा। उन्हें तो सारी जिंदगी अमर से डर रहा था कि सब छीन लेगा वो। फिर अब क्यों लग रहा था वो होगा तो महफूज रहेंगी। मुझे नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, मैं पागल हो रही हूँ अमर। लॉन में कुर्सी पर बैठी वो अंधेरे का हिस्सा बनी सिसक गई। भूख न लगने और नींद न आने से कोई पागल नहीं होता। अंदर जाएं, आराम करें, सुबह आ रहे हैं हम। मैं हो रही हूँ, तुम्हारा बाप मार देगा मुझे। अरसल को भी मार दिया है उसने। दूसरी जानिब अमर ने ठंडी सांस भरी। अपने बाप के घर चली जाएं। शहरियार वहां भी आ जाएंगे। तुम मुझे अपने घर नहीं बुला सकते? फॉर गॉड सेक, कहीं तो सुकून से रहने दें। वो सुलग ही तो गया था। बस कुछ दिन, या मुझे जैन के पास भेज दो। मुझे बता दो वो कहाँ है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जैन से पूछे बिना तो आपको नहीं बता सकता। आप सुबह तक इंतजार कर लें। अमर प्लीज घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। आप? वो कुछ सख्त कहते कहते रुक गया। नींद की गोलियां हैं आपके पास? अरसल नहीं करती, जब से अरसल वापस आया है तब से। कोशिश करें, आ जाएंगी नींद। आराम करें, मैं सुबह जैन से बात करके आपसे राब्ता करता हूँ। उसने मजीद कुछ सुने बिना ही कॉल काट दी थी। सर घुटनों पर टिकाए हुए जरताज खुद में सिमट गई। अगले दिन निहाल जेल से फरार हो गया था और अमर को जैन से बात करने का वक्त नहीं मिला। सारे दिन के इंतजार के बाद शाम में वो शहरियार की स्टडी में आई थी। लॉकर में रखे कागजात यही सोचकर उठाए कि यहाँ से सीधा रावलपिंडी जाएगी। जैन बाप के खिलाफ खड़ा था, उन्हें गले से लगाएगा और शहरियार के खिलाफ तमाम सबूत मीडिया को दे देगा। फिर उन्हें घर में अपने बिस्तर में शोहर के हाथों मारे जाने का खौफ नहीं होगा। फाइल में रखे नरम मुलायम कागजात को छूते हुए वो पलटी। निगाह स्टडी के चौखट पर खड़े हुए शहरियार पर टिकी तो टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। दहशत से उन्हें देखा जो दरवाजा बंद करते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। छोटे छोटे सुस्त से कदम उठाते वो सफेद रंग के कागजात को दबोचे दिल को बंद होते हुए महसूस करती पीछे हटती गई। बाबा ने नमली मीरा से निकाला, सरदारी छीन गई, अदालतों में धक्के खाए, पाई पाई जोड़ी सिर्फ इसलिए कि सरताज बेगम एक ही वारदात में सबको आग लगा दें। वो हंसे। उनकी तमस्कराना हंसी बहुत ही मकरवा महसूस हुई थी। उनकी मुश्तेल आंखें और जहर उगलती हुई जबान किसी अनहोनी का पेश खेमा लगती थी। वो चीखना चाहती थी मगर उनकी गर्दन शहरियार के सख्त शिकंजे में थी। मैंने सब कुछ त्याग कर सारी जिंदगी घर बिठा कर खिलाया और तुम आज भी सिर्फ अपना सोच रही हो। उनके नाखून जरताज की जिल्द में खुपते जा रहे थे। खौफ के जेरे असर वो बस फटी फटी आंखों से उन्हें तकती थी। कुव्वतें गोयाई सलब हो चुकी थी। तुम जैसे हरामजादे का साया भी बर्दाश्त नहीं मुझे अपने बेटों पर। तुम्हें अपनी जानिया माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था अमर। किचन के फर्श पर तकलीफ से तड़पता अमर दोनों हाथों से गर्दन के गिर्द अनदेखा शिकंजा
हटाता हुआ नम आंखों से उन्हें देखता अमर। तुमने सब कुछ दौलत के लिए किया था शहरयार। जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि कागजात गिराकर दोनों हाथों से उन्हें धकेला था। शहरयार का हाथ उठा और जरताज का रुखसार लाल करता चला गया। तुम्हारे बाप ने भी बिना किसी तावान के ये दौलत मेरी झोली में नहीं डाली थी। तुम्हारे गुनाह को अपनी औलाद कहकर 28 साल पाला है मैंने। उनकी दहाड़ स्टडी के दरवाजे तक पहुंचकर घुट गई। लाउंज वीरान था। ऊपर को जाते हुए जी ने तारीख। कौन सी औलाद? वही औलाद जिसकी बरसों की मेहनत को अपने सगे बेटे की नफरत में आग लगा दिया तुमने। उनका हाथ शहरयार के गिरेबान में था। मैंने कहीं आग नहीं लगवाई। अपना गिरेबान छुड़वाकर वो जरताज को बालों से जकड़ चुके थे। आप गवाही दे सकती हैं मेरी माँ की बेगुनाही की। जो शख्स अपने बाप, भाई, बेटे की तमीज नहीं रखता वो आपका भी लिहाज नहीं करेगा। मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करूंगा। बस गवाही दे दें कि मेरी माँ पाकीज़ा थी। 20 साला अमर बहुत उम्मीद से उन्हें देखता था। पाँव भी पकड़ोगे तब भी तुम्हें अपने बेटों के बराबर नहीं आने दूंगी मैं। अमर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा शहरयार। बालों की तकलीफ बुलाई वो दोनों हाथों से शहरयार का मुंह नोचने की कोशिश कर रही थी। अमर, मुझे नींद नहीं आती, भूख मर गई है, मैं पागल हो रही हूँ। खुदा तुम्हें जलील तरीन मौत मारे अमर। जानिया थी तुम्हारी माँ। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं, वरना लिहाज नहीं करूंगा। अमर की मुजरिम तुम भी हो। तुम्हें भी सर आंखों पर नहीं बिठाएगा वो। शहरयार ने जरताज को बालों से पकड़े घसीटा। खुद को बचाने की कोशिश में वो अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई। उनका सर कांच की मेज से टकराया। छन्नाके से मेज टुकड़े टुकड़े हुई। कांच की कुर्सियों पर खून बहता जा रहा था। साकित आंखें शहरयार को तकती थीं, जो अपना तनफ्फुस बहाल कर रहे थे। फटी फटी आंखों से बीवी की लाश को तके गए। दिल नहीं कांपता आप लोगों का? खुदा के कहर से डर नहीं लगता? उनकी नींद, उनकी भूख, उनका सुकून सब ले गए हैं आप लोग। अपने ही बाप के घर में वो खुद को कैद महसूस करते हैं। क्या कुछ सहा होगा कि हालात इतने बिगड़ गए हैं और आप अभी भी सिर्फ अपना सोच रही हैं। उन्हें घर आने का कह रही हैं, बस इसीलिए कि आपको अपने शोहर से डर लग रहा है। मेरा शोहर भी जीता जागता इंसान है, उसकी अपनी जिंदगी है और उस जिंदगी में नासुर बन गए हैं आप लोग। उसी सुबह फजर में अलमीरा की कॉल आई थी। शायद रात उनकी और अमर की गुफ्तगू सुन ली थी। शहरयार मुझे मार देगा अलमीरा, उसने ज़ैन के बाप को भी मार दिया। आप लोग एक दूसरे के साथ जो करें, बस हमारी जिंदगियों से निकल जाएं। मैं आपको मजीद अपने शोहर पर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। थोड़ा भी खौफ खुदा बाकी है तो मेरे शोहर के आगे दोबारा अपनी बेबसी का रोना मत डालिएगा। वो इतने अच्छे हैं कि आप पर तरस खा लेंगे और मैं उनके मामले में इतनी ही बुरी हूँ कि आपको मजीद उनकी जिंदगी में जहर नहीं भरने दूंगी। स्याह बाल खून में रंगते चिपचिपे हो रहे थे। गर्दन ढलक चुकी थी। चंद लम्हात कबल जो कागजात जान की जमानत थे, अब वो सुर्ख रंग में डूबते जा रहे थे। पंजों के बल बैठे शहरयार हाथ बढ़ाकर वहशत ज़दा आंखों को बंद कर चुके थे। सियाह बूटों के दाएं बाएं से खून फिसलता जा रहा था। जर्द रोशनियों में नहाता कतरा कतरा रगों से निचड़ता खून। कांच के बिखरे टुकड़े साकिन थे। दीवार गिर अलमारियों में रखी किताबें सांस रोककर जिंदगी को दरवाजे से निकलता हुआ देख रही थी। उन्हीं किताबों में से एक किताब छोटा सा कैमरा अपने सीने में दफन किए कत्ल की गवाह बन चुकी थी। कॉमसेट्स की इमारत बारिश में भीग रही थी। धुंध में लिपटी सड़कें और फिर तड़ातड़ बरसती हुई बारिश ख्वाबीदा सा मंजर पेश कर रही थी। तुलबा सर्दी में ठिठुरते हुए छतरियों के साए तले जल्द अज जल्द किसी छत के नीचे होना चाहते थे। रात के 8 बज रहे थे। लाइब्रेरी भी बंद होने वाली थी। हॉस्टलर्स सरों पर बैग रखे हुए सड़ाप सड़ाप की आवाज़ निकालते हुए हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे। कैफ़े में बैठी अलमीरा गर्दन घुमाए बारिश को देख रही थी। कैफ़े में मामूल से हटकर रश था। भाप उड़ाती चाय की कप, सूप के प्याले लिए लोग मेज़ों के गिर्द रखी हुई कुर्सियों पर जमकर बैठे ठंड से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ऊनी शोले, स्वेटर, कोट, मुंह से निकलता हुआ धुआं, ठंड से बर्फ होते हुए हाथ। एक ही रात में एबटाबाद पर जाड़ा उतर आया था। वो भी उस जाड़े की जद में आई थी। उसे मौसूल हुआ एक पैगाम सोचने समझने की हर सलाहियत सलब कर चुका था। वो बस बारिश को तकती जा रही थी। इतनी तेज बारिश कि उस बौछार में कुछ और सुनाई न दे। रात की बारिश में भीगती कॉमसेट्स की इमारत से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था। अलमीरा के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं था। मेन गेट खुला तो पराडो अंदर आई थी। बेफिक्री से आगे चलते हुए तुलबा की वजह से गाड़ी सुस्त रवि से आगे बढ़ती गई। ए ब्लॉक के पास गाड़ी रोककर उन्होंने मोबाइल उठाया था। विंड स्क्रीन पर चलते हुए वाइपर्स को तकते हुए उसे कॉल मिलाई।
बेल जाती रही, कोई जवाब नहीं आया। वो छतरी उठाए हुए बाहर निकल आए। इर्द गिर्द बहुत से चेहरे थे। वो किसको रोककर उसका पूछते, इतनी बड़ी इमारत में कहाँ उसे ढूंढते। उबैद। उस शाम उसी लड़की की तरफ से इशारा करके उसने कहा था कि ये उसका सबसे अच्छा शागिर्द है। उबैद उस आवाज़ पर रुक गया, मुड़कर उन्हें देखा। आंखों में शनाशाई उतरी। तेज तेज कदम उठाता हुआ उनकी तरफ आया। आप मैम अलमीरा के हस्बैंड हैं ना? उसके इस सब्सार पर अमर ने सर अस्पात में हिलाया। वो कॉल नहीं उठा रही, कुछ अंदाजा है कहाँ होंगी? जी अभी कैफे में देखा था उन्हें, आए? वो उसके पीछे चल पड़े। बारिश की तेज बौछार को छतरी पर रोकते हुए वो अंदर दाखिल हुए थे। वो सबसे अलग थलग खिड़की के पास रखे हुए मेज पर थी। उबैद वहीं रुक गया। अमर आगे चले आए। मीरा। भारी आवाज पर उस वक्त से बेतासुर आंखों में एकदम ही नमी पिघल गई थी। उसने गर्दन घुमाई। वो उसका लाल चेहरा, पुरनम आंखें देखकर किलस कर रह गए। इतनी ठंड में वो बिना शॉल के बैठी थी, हल्के बादामी रंग के गर्म लिबास में मलबूस, दुपट्टा कंधे पर टिकाए, कमर पर गिरते बाल हल्के से भीगते हुए थे। शायद वो बारिश में भीगती हुई यहाँ तक पहुंची थी। बालों में लगा हुआ फूलनुमा क्लेचर बिल्कुल ढीला पड़ गया था। भीगी लटें चेहरे से चिपक रही थी। अमर ने अपनी सफ़ेद जैकेट उतारकर उसके शानों पर डाली। वो उसके बहुत करीब थे, इतना कि वो जो सर उठाए नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अमर बआसानी उन आंखों में तैरती हुई नमी में अपना डोलता हुआ अक्स देख सकते थे। अमर छतरी के साए तले अलमीरा का हाथ थामे उसे गाड़ी तक लाए थे। उबैद ने उसका हैंडबैग और लैपटॉप पकड़ रखा था। उसने सामान पिछली सीट पर रखा। अमर उसका शुक्रिया अदा करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे। दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ घूमे, आगे होकर उसकी सीट बेल्ट लगाई। वो सर झुकाए गोद में रखे हुए हाथों को तकती रही। लैंड क्रूज सुस्त रवि से चलती हुई गेट से निकल गई थी। गाड़ी फर्राटे भरते हुए सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। बारिश की बौछार से अंधी होती हुई विंड स्क्रीन पर मुसलसल वाइपर चल रहे थे। तवज्जो से ड्राइविंग करते हुए अमर गाहे बगाहे उसे देखते। जाने क्यों लगा उसकी खामोशी, उसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ बारिश नहीं थी। वो आए थे तो वो गर्दन घुमाए हुए बारिश को ही तक रही थी। अलमीरा कभी अपने होश व हवास में इतना निडर होकर बारिश को नहीं देखती थी। फिर क्या हुआ था? सुबह ठीक थी वो। अमर खुद उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था? मेरा हाथों को रगड़ती हुई वो सख्ती से आंखें मीच गई। सर में दर्द की टीसें उठी थीं। उसने सीट आर्म रेट पर रखे हुए अमर के बाजू को दबोचा। सब ठीक है जाना, यही हूँ। जलती हुई आंखों को बंद करती वो निशिष्ट पर सर टिका गई। कई पल उसी हालत में बैठी रही। मीरा, खाना खाया है? उनके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोक दी। गर्दन घुमाकर अपने बाजू पर रखे हुए उसके हाथ को देखा। तुम बैठो, मैं बस 5 मिनट में आया। उन्होंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। मत जाएं। आवाज़ भर्रा गई। बस 5 मिनट जाना। तशवी से कहकर वो सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से उतर गई। कंसोल ट्रे पर रखा हुआ उसका मोबाइल थरथराया। वो लहजा भर में बहुत सा खौफ आंखों में उमड़ आया था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। नंबर देखकर ही रूह फना होती हुई महसूस हुई। उसने कॉल उठा ली, मोबाइल कान से लगा लिया। तो कहाँ थे हम अलमीरा? भारी मखमूर आवाज़ उसके जिस्म का हर बाल खड़ा कर गई। माजरत, मैं पिछले दिनों ज़रा काम में फंस गया था, तभी राब्ता नहीं कर पाया। अब बोलो, माँ के बगैर जिंदगी कैसी जा रही है? हेज उठाता हुआ अंदाज था। वो दम सांस अंदर उतारती हुई कितनी ही आंसू गिराती गई। अमर के बगैर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जालिम ख़त्म हो जाए तो दुनिया जन्नत है। मार दूँ उसे? अलमीरा ने फायर की तेज़ आवाज़ सुनी। अमर के पेट से भल-भल बहते हुए खून को देखा। उसने आगा जान की बात सुनी। वो कह रहे थे खाना कोमा में है। उसने खुद को गिरते पाया। बीप की तेज आवाज़ हर मंजर को जहन से उड़ाती गई। मोबाइल पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। वो मेरे सामने खड़ा है अलमीरा। एक गोली सीने में या कार क्रैश, वरना खंजर। उसके लिए मौत का तरीका तुम खुद चुनो। बारिश की बौछार में उसने सियाह छतरी देखी और अमर की पुश्त देखती सफ़ेद जैकेट। वो सड़क पार कर रहे थे। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकली। उसके कंधों पर डली हुई अमर की जैकेट ज़मीन बोस हो गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा था। मोबाइल हाथ में लिए हुए वो हवास भागता होकर सड़क की तरफ भागी थी। तेजी से आती जाती गाड़ियाँ मुसलसल हॉर्न दे रही थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की जर्द रोशनी में बारिश का पानी सोना हो रहा था।
خوف की आखिरी हद को छूती अलमीरा दुपट्टा गिराती सड़क पर भागती गई। उसने आवाज देकर अमर को रोकना चाहा, उसकी आवाज हलक में दब कर रह गई। लब वाह हुए मगर वो हर जबान भूल गई। दूर से आती तेज रफ्तार गाड़ी ने हॉर्न दिया। उसने फटी फटी आंखों से करीब आती हुई गाड़ी को देखा। हॉर्न की आवाज तेज होती गई। हाथ में पकड़े हुए मोबाइल के पार गाजी कुछ कह रहा था। अमर गाड़ी का हॉर्न नहीं सुन रहे थे, वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। और फिर एक झटके से किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तेज रफ्तार गाड़ी हॉर्न देती हुई बारिश को काटती दूर चली गई। बारिश में भीगते अमर ने खौफजदा फिक्रमंद निगाहों से उसे देखा। वो रो रही थी। बारिश कितनी भी तेज हो जाए, उसके आंसू अमर की नजरों से नहीं छुपा सकती थी। हिचकियों से सिसकियों से वो रो रही थी। बारिश में मुकम्मल भीग चुकी अलमीरा। वो आपको मार देगा, उसने आपको मारा था, पहले भी धमकी दी थी। मैं बुला रही थी आपको, वो गाड़ी हिट करने वाली थी। आप कोमा में थे, आप तकलीफ में थे, आप मर रहे थे। वो उनकी बात कर रही थी, तकलीफ की इंतहा पर पहुंचकर भी बस उन्हीं का नाम ले रही थी। अमर उसकी सांसों का उखड़ना देखते गए, हैरत से, बेयकीनी से। मेरी बात नहीं सुन रहा वो, मैंने बताया था उसे आपने कुछ नहीं किया था, फिर भी कार क्रैश, रिवॉल्वर, खंजर, वो आपको मार देगा। मैं जब भी आपसे मोहब्बत करूंगी वो आपको मार देगा। वो मुझे मोहब्बत नहीं करने देगा आपसे, वो हमेशा आपको मार देता है, आप मर जाते हो खाना। अलमीरा कुछ और भी कह रही थी, उनका जहन तो मोहब्बत और मौत पर ही अटक गया। मीम से शुरू, ते पर ख़त्म। बारिश का पानी, अलमीरा की मोहब्बत, अमर की मौत, कैसा सितम था ये। उनकी निगाहें उसके भीगते चेहरे से फिसलते हुए, लरसते हुए हाथों पर टिकी। वो मोबाइल को इतनी सख्ती से जकड़े खड़ी थी कि हाथ खून छलकाने लगे थे। उन्होंने धीरे से मोबाइल उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। बाएं हाथ से उसका हाथ थामे मोबाइल कान से लगाया। हेलो, भारी आवाज़ थकन से निढाल लेजा। बिंगो, वो कहका लगाकर हंस पड़ा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में आवाज़ को पहचान गई वो। बेयकीन निगाहों ने अलमीरा के चेहरे तक का सफ़र किया। वो सिसक रही थी, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बारिश का पानी तेजाब बनकर जिस्म में झुलस रहा था। गर्दन किसी नोकीले शिकंजे में थी। सहारे के लिए अमर का बाजू दबोचे वो नीचे बैठती चली गई। ऑक्सीजन बिल्कुल बंद हो गई। अगले लम्हात में वो गिरने वाली थी। हवेली से 2 गलियां दूर ये घर अदीना का था। घर के बाहर सिया रेंज रोवर खड़ी थी। घर के अंदर लाउंज में सोफों पर जहांगीर मुराद के बेटे बैठे थे, निहाल जहांगीर और गाजान जहांगीर। उन दोनों के चेहरे पर ढूंढने से भी वो मासूमियत ना मिलती थी जो उनके हम उम्र बच्चों के हर अंदाज से झलकती थी। वो दोनों संजीदगी से अपने सामने पंजों के बल बैठी हुई खातून को तकते थे जो खुद को किसी आमिर खान की माँ बताती थी। मैं डर गई थी, सीट पर गन पड़ी थी। मैंने कल रात अपने बेटे से वादा किया था, मैं उसके लिए जीऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। पठानों सी सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला चेहरा आंसुओं से तर था। लंबी उंगलियों वाले हाथ लर्जिश का शिकार थे। उसका खालिश पश्तून लबो लहजा, उसकी गहरी कत्थई आंखें और उसके अंदर धड़कता हुआ माँ का दिल। उम्र क्या है आपके बेटे की? 9 साल है। अगर गाजी की जगह गाड़ी में वो होता, क्या आप फिर भी? उन्होंने तड़प कर निहाल के मुंह पर हाथ रख दिया था। मेरे बेटे ने बहुत कुछ सहा है, उसके लिए ऐसे मत कहो। मैं माँ हूँ, माएँ अपनी औलाद के लिए इतनी ही खुदगर्ज होती हैं। मेरा बेटा वो बहुत तकलीफ में रहा है। 2 साल, कल रात पूरे 2 साल बाद मैंने उसे गोद में लिया था। मैंने उसे थपक कर सुलाया था। मैं कैसे न डरती। मेरा बेटा बहुत मासूम है, उसके लिए ऐसे मत कहो। वो सिसक गई। गाजी नम आंखों से उन्हें देखता गया। क्या माँ की मोहब्बत ऐसी होती है? उसने तो अपनी माँ को बस बीवी के रूप में शोहर से मार खाते हुए देखा था, वो भी बहुत मासूम था। फिर उसकी माँ क्यों उसके बाप के सामने यूं न गिड़गिड़ाई जैसे ये औरत अपने बेटे के लिए सिसक रही थी। क्या बहुत मोहब्बत है आपको अपने बेटे से? तब से खामोश बैठे हुए गाजी ने इस्तफसार किया। वो तेजी से सर हिला गई। बहुत ज़्यादा। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने अपने बेटे को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, तभी मैं डर गई थी। माएँ औलाद के लिए ऐसे ही डर जाती हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती मेरी गलती का कफ़ारा मेरा बेटा अदा करे, वो बहुत मासूम है। उन्होंने गाजी के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। अपने जिस्म पर जगह जगह ड्राइवर के हाथ महसूस करता हुआ गाजी
खामोशी से उन्हें तकता गया। वो रोती गई, सिसक सिसक कर। आप किसी को नहीं बताएंगी गाजी के साथ क्या हुआ? किसी को नहीं। तंबी करती निगाह थी निहाल की। नहीं बताऊंगी। तुम मुझे माफ कर दोगे ना? गाजी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ वो नहीं होना चाहिए था। मैं डर गई थी। मुझे माफ कर दो। निहाल ने मजबूती से गाजी का हाथ थामा, जिसकी आंखों में आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। वो दोनों हाथ जोड़े रोती गई। फिर अचानक से उन्होंने अपने मुंह पर किसी का भारी हाथ महसूस किया। उन्होंने दोनों हाथों से खुद को उस सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, मगर बस फड़फड़ा कर रह गए। फटी फटी आंखों से उन दोनों को तकती थी, जो हेबत से उनके पीछे खड़े जहांगीर मुराद के सेक्रेटरी को देख रहे थे। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। निहाल गुर्राकर उठने लगा कि गार्ड्स ने तेजी से दोनों को जकड़ लिया था। वो दोनों हाथ पांव मारते हुए उस तड़पती हुई औरत को देखे गए, जिसके मुंह में नींद की गोलियां डाली जा रही थी। वही गोलियां जो कुछ देर कबल निहाल की कार को पैंट के जेब में थी। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे। गार्ड्स उन दोनों को जकड़े बाहर की तरफ घसीटने लगे। वो दोनों उनकी सख्त गिरफ्त में मचलते हुए खौफजदा निगाहों से जमीन पर एड़ियां रगड़ती हुई औरत को देखते गए। वालदा। लाउंज में बैठा अमर माँ को कमरे से बाहर आते हुए देखकर तेजी से उनकी तरफ लपका। अमर, माँ की जान, कैसे हो? वो उसे गोद में उठाए हुए दीवानावार चूमती गई। छोड़ो मुझे। गहरी कत्थई डुबडुबाई आंखें आंसू बहाती दूर जाते गाजी और निहाल को देखे गई। नींद की कितनी ही गोलियां हलक से नीचे उतरी और कितनी फर्श पर बिखरती गई। मुंह पर से वो भारी हाथ जरा सा न सरका सकी। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी अमर, तुम मुझे माफ कर दोगे? अमर के बालों पर लब रखे हुए वो रोती गई। अमर हौले से माँ की पुश्त को थपकता गया। अमर, मेरे बेटे, मेरी जान। वो एक दिन के अमर को गोद में लेकर अश्कबार हुए। उसकी पेशानी पर लब रखे तो रगों में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। अमर को बाबा से ज्यादा प्यार है या मैं? आप मोरे, आप। छोटा सा अमर लपक कर माँ के हाथ चूम गया। अमर की मोरे का सर फर्श से टकराया था। जहन की स्क्रीन पर आखिरी बार अमर का चेहरा उभरा, फिर वो सिसकता वजूद बेजान हो गया। आंखें खुली रह गई। उस शाम अदीना घर को लौटी तो बड़ी बहन की लाश देखकर घुटनों के बल गिरी थी। उस शाम मोरे के अमर की चीख सारे नमली मीरा ने सुनी थी। जी, तो यहाँ होता है 8th एपिसोड कंप्लीट और जरताज बेगम की डेथ हो चुकी है, या मर्डर कहूँ, चाहे एक्सीडेंटली हुआ था लेकिन हुआ तो है। अब सिर्फ बचते हैं शहरयार, क्योंकि अमर तो अब अपनी माँ का बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि जिसने उसकी माँ को मारा है वो तो शायद मर खप भी गया होगा, सेक्रेटरी। और निहाल के फादर की डेथ तो पहले ही हो चुकी है और मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ये भी जिंदा होगा। बाकी निहाल और जहांगीर का उनके मर्डर में तो कोई हाथ नहीं है। हाँ, उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने अपने फादर को बता दिया था कि इन्होंने देख लिया है गाजान और ड्राइवर को, तो इनसे यहाँ गलती हुई है। बाकी तो इनका हाथ नहीं है उस मर्डर में। और निहाल और जहांगीर बचते हैं। निहाल भी जेल से निकल गया है, मतलब भाग गया है, और गाजान का पता नहीं है कि कहाँ है। और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि इन दोनों में से एक शायद मर चुका है किसी भी तरह से, शायद जो भी हो। और शायद हो सकता है कि गाजान ही मर चुका है और निहाल ही गाजान बन रहा है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं शक है मुझे, देखते हैं बाकी। और अब तो ये तो कंफर्म हो गया है कि ये दो थे, निहाल और गाजान, लेकिन अब ये है कि शायद इनमें से एक मर चुका है किसी भी तरह से, वो तो मालूम नहीं, लेकिन मर चुका है कोई तो। और अभी भी कॉल पर कौन था वो तो अमर पहचान गया था, लेकिन कौन था ये नहीं मालूम। और जिस तरह से पहचाना है वो तो ऐसे लग रहा है कि गाजान को ही पहचान लिया हो, लेकिन अमर गाजान से कभी मिला ही नहीं है। बाकी देखते हैं। और मुजाहिद खान को इतनी मिन्नतें करी है अलमीरा ने, तो शायद हो सकता है कि वो अब आ जाएं। और अब सेकंड लास्ट है नेक्स्ट एपिसोड, तो मे भी हो सकता है कि अब तो आ ही जाएंगे। और देखते हैं मुजाहिद खान और अदीना की हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं। बाकी शायद उम्मीद तो है कि अमर और अलमीरा की होगी। बाकी आप बताएं कैसा था एपिसोड, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।